हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज़। आर्यावर्त वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिद्दू। यहां हम चर्चा करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडो पाक रिलेशन एंड बर्निंग इशू। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы All targets destroyed successfully. Good fiber, guys. General 3, weapons check. A bomb has malfunctioned. It's stuck on my right wing. Yeah, I see it. You need to be very careful while maneuvering. Copy. Control. Status on F-16s. F-16 अभी भी तुम्हारे पीछे है. On your 6, 102 kilometers. Flying at Mark 2. Relaying live position now. Copy that. हम ऑलमोस्ट उनकी फायरिंग रेंज में हैं. Guys, 5 minutes to cross LOC. They can fire anytime. Anyone got a lock signal? Negative. F-16 have halted their pursuit. वो साउथ की तरफ मुड़ गए हैं. Vector is 180 at 120 kilometers. They are heading south. हम सैम्स की किल रेंज में हैं. F-16 जैसे उनकी रेंज से बाहर निकलेंगे, they'll launch missiles from the ground. Launch site की location? Negative. अभी तक कुछ नहीं है. F-16 को सैम्स की लोकेशन बताओ. So if they've turned back, then we are already in the kill range. Control. Missile launch site estimated between 350 to 60. We can't go straight. We have to turn south now. You're right. Gibraltar Road. Hard left to 180. It could be anywhere. Updating you vectors. Keep heading 180. 400. Caution. Division control.
control. Caution. I'm being painted. Guru 3, dropped in 2. Caution. Caution. Receiver is still blind. Caution. Shit! फायर कहीं से भी आ सकता है. Evade guys! Break formation! Missile launch. We are Missile fired. launch. I've been engaged. Missile launch. Anybody got a visual? Second missile launch. Deploying flares. Where is it? Civil 3, visual contact at 9. 10, distance of 30 kilometers. I got a visual. Carrying out anti-SAM maneuver. Flip back. Ground 3, back right, right, right. Where is it? I got a visual. This is it, do it now. Pull up, repeat, pull up. Deploying flare. Pull up. Pull up. Pull up. कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो Hello guys, this is Elite Prader and we're gonna talk about Balakot today. Air Marshal Chandrasekhar Harikumar reached Gwalior for a farewell dinner with number 7 squadron, जिन्हें उनके नाम से कम और काम से ज़्यादा जाना जाता था। ये वही स्क्वाडन है जिसने कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी की नाक में बॉम्ब कर दिया था। दम तो छोटी चीज़ है। जब बैटल एक्सेस अपने कमांडर की फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो उसी दौरान उनके कमांडर ने उन्हें सौंपा अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन। पूरी इंडियन एयरफोर्स में से नंबर 7 स्क्वाडन को चुना गया पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए। फेयरवेल पार्टी के कवर में एयर मार्शल हरिकुमार असल में पाकिस्तान पर अटैक प्लान कर रहे थे। इस मिशन के लिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बिना किसी को अलर्ट किए पूरे बेस को बैटल रेडी करने का एक ही तरीका था, एक हाई लेवल इंस्पेक्शन। डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन DSAI के ऑर्डर इशू हुए और पूरा बेस मैक्सिमम लेवल अलर्टनेस पे चला गया। अभी भी पायलट्स के सिवा इस मिशन को एयरफोर्स में सिर्फ 4 ही लोग जानते थे। ऑफिसर्स एयर मार्शल हरिकुमार के फेयरवेल पार्टी में शामिल हुए। दूसरी तरफ
ग्वालियर में मिराज 2000 के पायलट अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन के लिए रेडी हो रहे थे। 16 मिराज 2000 के का पैकेज बरेली में मिड एयर रिफ्यूलिंग करके एलओसी की तरफ बढ़ने लगा था। पाकिस्तानी साब एवैक जो पेट्रोलिंग पे था उसने उन्हें आते हुए देख लिया था, क्योंकि मिराज 2000 ने एकदम से काफ़ी एल्टीट्यूड गेन किया था। 2 F-16 को तुरंत स्क्रैम्बल किया गया। मीडिया में हर तरह के स्पेकुलेशंस थे। एयर स्ट्राइक को कंसिडर किया जा रहा था, इसलिए ये रूमर्स भी प्लांट की गई कि शायद भावलपुर पर हमला हो सकता है। भावलपुर में ही हाफिज सईद के घर और हेडक्वार्टर हैं, पर उसी टाइम पाकिस्तानी एवैक को अपनी रडार पे 4 IF जगुआर एयरक्राफ्ट राजस्थान के फ्रंट पे LOC के पास जाते हुए दिखे। जगुआर भावलपुर की तरफ बढ़ रहे थे। रूमर सच होती दिख रही थी। जगुआर्स के साथ कई सुखोई 30s भी हवा में दिखे। उसी टाइम जो 2 F-16 हवा में आए थे उन्हें भावलपुर की तरफ डाइवर्ट किया गया और कई और एयरक्राफ्ट को जगुआर को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। यहीं पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के जाल में फंस गया। F-16 के जाने के बाद मिराज 2000 का रास्ता क्लियर था। सुबह के करीब 3:45 पर भारतीय वायुसेना ने LOC क्रॉस की और करीब 5 बॉम्ब से जाबा टॉप, जो कि जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ी ट्रेनिंग कैंप में से एक है, उसके की इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर बालाकोट को ही क्यों चुना गया? कौन से बॉम्ब्स IF ने यूज़ किए? उनकी खासियत क्या है? हमने कितने आतंकवादी मारे और उनके सबूतों का क्या? ऐसे कई सवाल इंटरनेट पे घूम रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बालाकोट कैंप पिछले 15 सालों से रॉ की नज़र में था। पुलवामा होने के बाद इंडियन स्पेशल फोर्सेस के डर से पाकिस्तानियों ने अपने आतंकवादियों को लॉन्च पैड से पीछे बुला लिया था और इनमें से कई आतंकवादी बालाकोट बेस कैंप में भी होने की पॉसिबिलिटी बोली जाती थी। रॉ के एजेंट्स ने बालाकोट बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स को दी, जैसे जो रिक्रूट को रखने का शेल्टर है वो कितने फ्लोर्स का है, उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। इंडियन एयरफोर्स के पास कॉन्टीन्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और ऑन ग्राउंड सोर्सेज से बहुत ही क्रेडिबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी। बालाकोट बेस कैंप को मजबूती से बनाया गया था, जिसे नॉर्मल बॉम्ब्स ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते थे। इसलिए एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 के पेनेट्रेटर वर्जन को यूज़ किया। ये बॉम्ब्स यूजुअली बंकर बस्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इनके पेनेट्रेटर वर्जन का वजन 900 किलो से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें एक्सप्लोजिव 90 से 100 किलो के करीब ही होता है, जो कि इनके वजन के करीब 10% है। स्पाइस की स्टैंड ऑफ रेंज 60 किलोमीटर है और ये अपने टारगेट को पेनेट्रेट करता है काइनेटिक एनर्जी से, जो इसके भारी वजन से इसे मिलती है और अंदर घुसने के बाद फट जाता है, जिसके कारण बहुत सारा प्रेशर और करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट जनरेट होती है और कोई सॉफ्ट टारगेट जैसे कोई ह्यूमन इससे बच नहीं सकता। बालाकोट स्ट्राइक में IAF का मेन टारगेट मुजाहिद हॉस्टल था, जो 2 फ्लोर का काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था। दूसरा टारगेट चीफ ट्रेनर, जो मसूद अजहर का साले का घर था, और गेस्ट हाउस जिसमें इंस्ट्रक्टर रहते थे। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रॉय करने का कंफर्मेशन दिया है। रही बात सबूतों की, तो सैटेलाइट इमेजरी से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसा कि फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ सर ने एक इवेंट में कहा था कि आपको स्पाइस बॉम्ब के पेनिट्रेशन होल्स देखने के लिए एक मिलिट्री गेट की इमेजिंग कैपेबिलिटी चाहिए, वो भी 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की, टू गेट देयर। ये इमेज 50 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन पे प्रोसेस्ड है और इसमें साफ 3 होल्स दिखते हैं मुजाहिद हॉस्टल में। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी साफ कहा है कि उनके पास सिंथेटिक एपर्चर रडार से ली गई इमेज और इंडियन सैटेलाइट से ली गई इमेज भी है। साथ ही में एक फ्रेंडली नेशन ने भी अपनी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस इंडिया को दी हैं फॉर फर्दर एडिशन एंड प्रूफ। मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेंडली अमेरिका हो सकता है। अब कोई बात स्टूपिड एलिगेशन को प्रूव करने के लिए अपनी सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ को पब्लिक तो नहीं करेगा। मैंने इसे स्टूपिड क्लेम इसलिए कहा क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद DG ISPR ने कुछ ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने जल्दबाजी में टारगेट मिस कर दिया और जस्ट सम ट्रीज आर अपरूटेड। पाकिस्तानी आर्मी ने शायद ज़िंदगी में कभी बंकर बस्टर बॉम्ब का इम्पैक्ट नहीं देखा। ये पिक्स DG ISPR ने पोस्ट की थी, जिन्हें देख के एक न्यूली रिक्रूट जवान भी बता सकता है कि ये कंट्रोल एक्सप्लोजन की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि एक बंकर बस्टर का किया हुआ अटैक कुछ इस तरह का दिखता है। दूसरी बात, ये सारी इमेजेस टेररिस्ट कैंप से करीब 150 to 200 मीटर्स दूर हैं, जबकि स्पाइस बॉम्ब की एक्यूरेसी फ्रॉम 60 किलोमीटर्स 3 मीटर्स की है। स्पाइस में टारगेट के कोऑर्डिनेट पहले से फीड होते हैं और इसे GPS से भी गाइड किया जा सकता है। स्पाइस की नोज पे एक थर्मोग्राफिक कैमरा होता है जो स्पाइस को अपने टारगेट की प्री अपलोडेड इमेज पे ही फोकस रखता है। मतलब हमारे बॉम्ब्स के मिस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और रही बात जल्दबाजी की,
तो पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे क्लोजेस्ट इंटरसेप्टर अराउंड 100 किलोमीटर प्लस दूर था और आईएएफ का स्ट्राइक पैकेज किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए आर्म्ड और प्रिपेयर्ड था। यह ऑपरेशन 21 मिनट तक चला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा जल्दबाजी कर कौन रहा था। एंड स्टिल कोई शक है तो फिर खुद पाकिस्तानी पीएम से सुन लेते हैं इंडिया ने क्या किया और इंडिया क्या करना चाह रहा है। हमें इन्फॉर्मेशन है और मैंने उनके साथ हमारी 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फ़ौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। और अगर अपने पीएम पे भी भरोसा नहीं है तो क्यों पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 26 फरवरी के बाद बंद कर दिया था, जो सीधा जुलाई में खुला? क्यों अपने फॉरेन मीडिया को 43 डेज़ के बाद जाबा टॉप पे पहुंचने दिया? हम जानते हैं आपने उन्हें सिर्फ वो मस्जिद दिखाई जिसे हमने टारगेट नहीं किया था। हम जानते हैं आपने कैसे पूरे कैंप को वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया, उसके भी सबूत हैं हमारे पास। नाउ अबाउट व्हाट वी नो विच एयरक्राफ्ट वॉज इन द एयर, वी नो हु वॉज इन द कैंप, वी नो द कैजुअलिटीज आर अबाउट 170 to 200 people, we know we killed Hafiz Saeed brothers-in-law, we know how many wounded you took to Harkat al-Mujahideen camp for treatment. You failed to save a lot of them, right? Yeah, we know. In the end, I just want to say this video is not to provide proof to anyone. We made our point on Jabba Top. Those who believe in the professionalism, capability and valor of Indian Air Force, don't doubt them. बट हर एक पाकिस्तानी जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं पूरे भरोसे से ये कह सकता हूँ कि हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, पर उन दहशतगर्दों से है जो हमें तो क्या तुम्हें भी नहीं छोड़ते। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक पे मैं भी शॉक था, पर एक बात ये भी श्योर है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के बीच में जो भी आएगा उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। चॉइस तुम्हारी, ट्रिगर हमारा।